फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्राबेंती, अपनी भगति लाए। तेरी पनह खुदाए, तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। सो कहो टल गुर से अहनिस सहज सभा। दर्शन परस्य जन्म मरण दुख जा। होवै सिफत खसमदी नूर अरशों। खुद डिठे सचे पातशाह, मर जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शांद। जिस पास बैठिया सोईए सबना दा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शांद। जिस पास बैठिया सोईए सबना दा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। देव लोक नूं चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। जमपुर गया पुकार सुन, विल लावण जी नरक निवासी। धर्म राय नू आखिओन, सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय, हों सेवक ठाकुर अविनाशी। गहने धरियन एक नाओ, पापा नाल करे निर्जासी। गहने धरियन एक नाओ, पापा नाल करे निर्जासी। पासंग पाप ना पुजनी, गुरमुख नाम अतुल तुलासी। नरकों छुटे जी जंत, कट्टी गलों सिल्क जम फासी। मुक्त जुगत नावे दीदासी। नरकों छुटे जी जंत, कट्टी गलों सिल्क जम फांसी। मुकत जुगत नावे दीदासी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक, दसां पातशाहियां दे प्रतक्ष स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण विच आप जी बड़े प्यार सहित हुणे श्री सुखमणी साहिब दे जाप विच हाजरी लवा रहे सी।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਠਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚਾਪਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਦਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਈ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਬਨ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ। ਕੰਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ ਮੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਪਰਸੈਂਟ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ, ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ।
क्योंकि समय के नाल धार्मिक थां भी घर बन जाते, उत्थे भी उही गल्लां बातां, उही विचार, उही रहन सहन। इसलिए कबीर जी कहते मैं तां नहीं एक घर छड्ड के बाहर नहीं गया, क्योंकि चुन खाइया कंधा, कहते अजों विकार ना छोड़े पापी मन मंदा। कहते विकार ते विच ख्यालां दे रूप विच ने, उन्हां दा शरीर नाल बहुता गहरा संबंध नहीं। विकारां दा संबंध साडे अंतਿਸ਼ਕਰਨ विच अण दिसदा है, जिथे साडी विचारधारा रहिंदी। कहते मन फिर भी उस तरह थोड़ा जिहा बंद तां हो गया, अजों विकार ना छोड़े पापी मन मंदा। फिर कहते क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। किवें छुट्टा इथों बझिया होया मन, कित्थे बझा है, किहड़ी चीज़ दे विच? बहुते लोकां नूं ते सानूं बंधन भी नहीं दिसदा, असीं कहने आ मुक्ति है, होर किहड़ी मुक्ति लभणी। ठीक है, जिंदगी चल रही। सवेर दे हुक्मनामे विच गुरु रामदास जी ने कहा भी असी बिख दे विच रंगे होए हां, विकारां दे विच। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली। बड़े लम्मे साधना तो बाद ते एक चीज़ की समझ बड़ी मुश्किल आउंदी है भी मैं डुब्बा होया जिथे असीं रहिंदे। एक जन्म पूरा लग जाता इस चीज़ नूं लभण लई, बड़ा लंबा समा लग जाता भी मैं जिहड़ी चीज़ नाल समझौता करके जी रहा ये जहर है। नहीं तो गुरु साहब कहते ने विखिया अमृत कौड़ा विखिया मिठी, पलट के लगता है, नज़र का पता नहीं लगता। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जा रहे सन, तुरदियां तुरदियां भाई मरदाना जी पिछे जा रहे हैं, यात्रा करते। अगले पासे एक छोटी जी नाली है, उहदे कोल खलो गए, उहदे विच एक कीड़ा सी, कोलों एक छोटा जिहा डक्का चुकिया, सोटी फड़ी गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने बाहर कढ़ते हैं कीड़े नूं, विचों चिक्कड़ दो, काले रंग का चिक्कड़, बदबू आउंदी उहदे विच। जदों उन्होंने बाहर कढ़दे ना अगों डंग मारदा है, उन्होंने किसी तरह खिंच के थोड़ा जिहा कंढे ते लियाउंदे ने ते ओह धक्के नाल फिर विच डिग पैंदा। जदों कढ़न लगदे फिर डंग मार। मरदाना जी पिछे खड़े सी, भाई मरदाना जी की भाषा विच मखौल हुंदा सी थोड़ा जिहा। गुरु साहब उन्होंने बहुत प्यार करते सी। भाई मरदाना जी पिछे खड़े ने टेढ़े जिहा हो के, कहते सुहान बाबा, सुहान दा अर्थ तू बहुत सोहना। सुबहान कहते वाह तेरी करनी नूं नमस्कार। कहते क्यों? कहते बंदे खत्म हो गए ने चिकड़ विचों कढ़न वाले, हुण कीड़ियां नूं कढ़न लग पे। अजे तो बंदे बड़े डुबे पे, हुण कीड़ियां नूं भी कढ़न लग गए। गुरु नानक देव जी ने क्या मरदाने है कीड़ा नहीं, ये सारी मनुखता का मन है, कीड़ा नहीं। मरदाना जी कहते महाराज एक गल दसो भी तुसी इहनूं बाहर कढ़ दिओ, नाले डंग मारदा नाले फिर छाल मार जांदा विच, क्यों कढ़ना चाहते हो? सतगुरु कहते मरदानिया मैं चाहुंदा इहनूं कढ़ के चंगी तरह नवा धुआ के ते आओ परली साइड ते जिहड़ा बाग है ना फुल लगे हुए उत्थे छड्ड दे। फिर ये क्यों नहीं उठदा तुहाडे नाल, वापस क्यों डिग पैंदा? कहते मरदानिया इनू इन्ने जन्म हो गए ने इस नाली विच रहिंदियां चिक्कड़ विच भी हुण इनू बदबू नहीं आउंदी, इत्थों सुगंध ही आउंदी। इन्ने लंबे जन्म, बड़ा समा। मन का एक सुभाव है, जिहड़ी चीज़ नूं बहुता समा वरत लै उन्होंने ही स्वर्ग लगन लग पैंदी, भावें नरक होवे, उहदे नाल संबंध जुड़ जांदा। कहंदे ये मनुख दी हालात है, पहला तां उसनूं ये ही जगाउणा बड़ा औखा है। सच्चाई है ये सब तो कठिन काम है कि सानू माया जिहड़ी ये संसार दिस पवे भी नाश माने नहीं दिसदी, बिल्कुल मन मनदे नहीं। वो मन कहता दूजे नूं पाया ने मंजे ते मैं थोड़ी पैना, इहदी मौत होगी मेरी नहीं होनी। ऐन खुश हो के कहते नवांदा धवांदा उन्होंने बड़ी चंगी तरह, कहते निबड़ गया काम, पर कदी अंदर मनेगा ही नहीं।
गुरु तेग बहादुर साहब जी खुद कहते ने, कहते सब तो हैरानी भरी इत्थे इक्को ही तो गल है, साधो रचना राम बनाई, एक बिन सह एक अस्थिर मानै, अचरज लखियो ना जाई। पता नहीं किन्निया को मोढियां ते चुक के भेज दिता, पर अपना पता लगता ही नहीं भी मैं भी इत्थों जाना है, वो समझ आती नहीं कदे। और ये सच्चाई है, धर्म का दूसरा नाम मौत है। जिन्ना चिर व्यक्ति मौत विचों नहीं गुजरता, धर्म तक नहीं जा सकता। मौत नूं चुनते ही नहीं। इस करके जे गुरबाणी की डूंघाई विच जाते जाओगे तो एक थां ते पता लगेगा, नाम दे अर्थ ने मौत, शरीर दी नहीं, मन दी मौत। नाम दे होर अर्थ ये तो शुरुआत है ना जपना। नाम दे अर्थ ने वो चीज़ जिहड़ी साडे पहले मन नूं खा जाए, अपने आप नूं खा जाए, जिहदे विच गुरु साहब दा शब्द आउंदा ना भी विआह होगा मेरे बाबला गुरमुखे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जाके अगे शब्द आएगा, आप आपे गुरमुख खाधा। अपने आप ਨੂੰ गुरमुख आप ही खा गया, खत्म कर दिता अपने आप। धर्म ਦੇ अर्थ मौत ने, नाम ਦੇ अर्थ मौत ने। जिवें एक बीज की मौत हो जाए तो फुल तां बनता है, संत तां बनता है जे इस जीवन का अंत होवेगा। ਇਹਦਾ खात्मा कबीर जी का एक पूरा शब्द है। वो कहते ने मैं पुरानी झुग्गी सारी ढा दी। शब्द उन्होंने कहा, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, ज्ञान की हनेरी आई एक, सब उडानी भरम की टाटी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भरम की छत उड गई। रह ना माया बांधी, जेड़ी छत माया नाल बनी हुई सी। दो चित्ते की दोए थून गिरानी, थून दे अर्थ ने आ जिहड़े थंम ने जिन्हां दे उत्ते छत खड़ा हुंदा। दो चित्ते दा अर्थ है दुबदा, दुबदा दे उत्ते ये छन खड़ी है जिहड़ी असीं बनाई। दो चित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेडा टूटा। बलेडा दा अर्थ है शतीर जां बीम कह ली अज दी भाषा विच। ये सारे पुराने शब्द ने, जे गुरबाणी नूं समझना ते उन्हां चीज़ां बारे ज्ञान जरूरी। मोह, मोह दा अर्थ है पकड़। मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छान परी धर ऊपर। तृष्णा की छन टुट के जमीन ते डिग पे। दुरमत भांडा फूटा, ते अंदर दुरमत भैड़ी मत, विकारां नाल भरी हुई मत का एक घड़ा सी, भी टुट गया, नाले सब तैश नैश हो गए, अंदर मार के रख दे। दुरमत भांडा फूटा, आंधी पाछा जो जल बरख है, ते तेरा जन पीना। उस हनेरी तो बाद एक मीह आया गुरु की कृपा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਧੁੱਪ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੂੜ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਹੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਦ ਭਾਰੀ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ कौडी लग मीका। मीका का अर्थ है मड़िकना, एक दूजे नाल खहना, एक दूजे का मुकाबला करना। ये सारे पिंडां दे शब्द ने गुरबाणी विच। मिकना, मिकना का अर्थ है, तुसी सते बलवंडे की वार पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी बारे कहते आप आपै सेती मिकिया। वो गुरु अंगद देव जी नाल खेडे, बराबर का किया उन्होंने। कहते कौडी लग मीका, ये जिंदगी बड़ी कीमती सी, हीरा सी, पर कौडियां दे भाव बेच दिती। सवास एक एक लंघी जाता, कोलों निकली जाता, गुजरी जाता, कदी समझ आउंदी नहीं। ये जिहड़ा नरमोल को कौडी लग मीका, इस तरह ये जिहड़ी विख है ना साडे अंदर, ਉਹਨੂੰ हटाउणा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ मुक्त होना है। राजे जनक दा ये सिद्धांत सी
वो कहता सी भी वो बंदा किवें पूरा हो सकता है जिहड़ा संसार नूं छड्ड के बाहर चला जाए तो बाहर जाके मुक्त होवे। नहीं, कहते विच रह के मैं मुक्ति लभनी है। कोई इस तरह का साधु मिले, कोई इस तरह का मैनू उस्ताद मिले जिहड़ा मैनू विच रह के सिखा दे। तो मैं सवेर की घटना नाल जोड़ देंगा, तुसीं सुणीए। अष्टावक्र आया, अष्टावक्र नूं सद्दिया गया। पिछली गल मैं कह चुका किवें आया सी। अष्टावक्र नूं उन्हें कहा मैनू ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान कला ज्ञान, परमात्मा नहीं अजे, क्योंकि गुरु ज्ञान देंदा है, परमात्मा उस तो अगे। मैनू ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान इन्ने टाइम विच मैं घोड़े ते चढ़ा तो इन्ने चिर विच ज्ञान हो जाए, टाइम नहीं लगना चाहिए। इस तरह का गुरु होना चाहिए। अष्टावक्र कहता भी इन्ने चिर विच ही ज्ञान हो जाएगा, पर वो शरत है जिन्ना तू वड्डी शरत लाई है, मेरी भी उस तरह की शरत। ये अष्टावक्र जन्म तो ही ज्ञानी सी, जन्म तो ही ज्ञानवान सी। जदों अजे इन्हें जन्म लेना सी, पुराने जिहड़े रवायतां दसदियां ने, अजे जन्म नहीं सी लिया, दा बाप भी विद्वान सी, वो पढ़ रहा सी ते उहनूं एक श्लोक दे अर्थ नहीं सी साफ हुंदे, वो मत्था मार रहा सी सारे दिन। ये अजे माँ के शरीर में सी, ये बोले अंदरों, इन्हें अर्थ करके दसते, कहते इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ो। वो कहता आवाज़ किधरों आती, समझ नहीं आती। पता लगा आवाज़, उन्हें श्राप दिता भी तू ये मेरे काम में दखल क्यों दिता है। ये घटना वखरी, ये शरीर में 7 बल से 8 अष्टवक्र। ये जनक नूं कहता भी ज्ञान मैं तेनों घोड़े ते चढ़न दे टाइम दे विच विच दे देंगा, तू शर्त बड़ी सख्त लाई है, पर जिन्नी शर्त तेरी सख्त है उन्नी मेरी भी सख्त शर्त है। उन्हें क्या की, अष्टावक्र कहता भी 3 चीज़ां मैनू सौंपणियां पैणगियां। तो वो राजा से उन्हें कहा 3 की 1000, मैं बादशाह, जिन्नियां कवेगा उन्नियां मैं तेरे सामने पेश कर देंगा। कहते नहीं, वो चीज़ां इन्नियां सौखियां नहीं। कहते दसो, कहते 3 चीज़ां दे दे, तन मन ते तन, 3 चीज़ां दे दे। ते जनक ने कहा भी मैनू रब दिस पेगा। कहते बिल्कुल दरवाजा तोड़ के विखा देंगा भी आ रब बैठा है तेरे सामने। ये गल चल पई। जिस वेले जनक ने कहा ना भी 3 चीज़ां मैं सौंपियां, तो ये बंदा कोई आम नहीं सी अष्टावक्र। ये कहता भी चंगी तरह सोच लै, जे तेरे कोल वक्त है, तू कह दित्तियां ने, कहण दा मसला नहीं। आ पंडित जिहड़े तू बिठाए ने, ये भी इस तरह जुबानी जुबानी चाह बनाते हैं, तो तू भी दई जाना, दिता जी दिता, वो कहते मिल गया चले। पर मैं तेनू वड वड के लैना, विचों सारा कुछ वेख लै, तेनू खत्म करांगा। मैं बेनती करदे गुरु धर्म ते नाम, ये अर्थ ने मौत। भाई गुरदास जी नू पढ़ो, कहते ने गुरु है गोर, उदाहरण दिती कबर। गुरु कबर है तो सिख मुर्दा है। दोवां दा संबंध तशबीह दिती है। कहन लगे मुर्दा होए मुरीद, सो गुर गोर समावे। पुछया जी इस तरह की क्यों उदाहरण दिती जे, सिख ते मड़ियां कबरां नूं पूजदा नहीं, एडी वड्डी हस्ती नूं कबर नाल तुलना। कहन लगे है ही कबर, क्यों? कहते जिदन कोई बंदा मरदा है तो कबर वखरी हुंदी है तो शरीर वखरा हुंदा है। जदों उन्होंने कबर दे विच दफना देंदे ने, उस दिन तो कबर उस शरीर नूं अपने वर्गा करना शुरू कर देंदी है, मिट्टी बनाना शुरू कर देंदी, कबर मिट्टी दी। कहते इस तरह जिदन कोई गुरु का सिख बनता है, सिख दे मन नूं गुरु अपने विच लै आउंदा है, ते ओदी होंद मिटाउण लग पैंदा ते अपने वर्गा बनाई जाता है। जिन हर जपिया से हर होए। इसलिए गुरु है कबर, सिख ओदे विच मुर्दे वांग पिया, ते ओदा अपना स्वरूप उस कबर ने मिटा देना है, सिख दा स्वरूप गुरु ने मिटा देना ते अपना स्वरूप ओदे विच रख देना। इनू कहंदे गुर, गुरु जमा सिख, गुर सिख बन गया। गुरु रामदास जी ने शब्द इथों शुरू किया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ
हर नाम ते आवे सिख तो जिंदगी शुरू की, पहली क्लास सिख बनना है। पर जदों इसे शब्द की एंड वाली अखीरली पंक्ति आउंदी उत्थे सिख शब्द नहीं, उत्थे गुरु साहब कहंदे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की। उत्थे नाल अगे गुरु शब्द आ गया, यानी कि हुण इह सिख दे जीवन दे विच गुरु है, ये गुर सिख बन गया। ये ऐलानिया तौर पर गुरु तो नहीं, ये सिक्खी का भेद है। ये सिक्खी का भेद है भी सिख दे विच गुरु वाले सिग्नल दिसदे ने, इशारा मिलता भी इत्थे गुरु है। सिख है भी वही है, नहीं तो है कित्थे। उहदे विचों गुरु नज़र आउंदा है। कई बारी आपां कही जाने गुरु नाल मेरा बड़ा प्यार है, प्यार की गल हो रही। प्यार उदों हुंदा है जदों दो हुंदे ने। जदों एक हुंदा प्यार किनू करना है, एक जोत दोए मूर्ति, वो मिलाप, वो ब्रह्म ज्ञान है। इस थां ते कहंदे जदों अष्टावक्र ने कहा ना तीन चीज़ां ते जनक कहंदा मैं दित्तियां, तन मन ते धन तैनूं दे दिता, तू मैनूं रब विखा कित्थे है, मैनूं दस दे कित्थे मैं स्टडी करांगा उहदे ते। जनक कहंदा भी ठीक है, तू तीन सौंपियां ने, कहंदे बिल्कुल सौंपियां। जदों ये गल हुई उदों जनक सिंघासन ते बैठा सी ते अष्टावक्र थल्ले सी। जदों जनक ने कह दिता मैं तिन्ने सौंपियां, अष्टावक्र कहंदा खड़ा हो जा, उहदी बोली बदल गई, हुक्मवाचक हो गई, जिवें बादशाह अपने गुलाम नूं कहंदा। कहंदे खड़ा हो इत्थों तखत तो। चक्रवर्ती बादशाह सी, दुआले सारे दरबारी जरनैल सब साजो समान बैठा सी। कहंदे खड़ा हो जा इत्थों। जनक खड़ा हो गया, क्योंकि तन सौंप चुका सी, शरीर हुण अष्टावक्र दा सी। कहंदे खड़ा हो के आओ, सामने जिथे जोड़े लाए ने उत्थे जाके बह जा, विच चौंकड़ा मार, थल्ले बैठ जा। उन्हें कहा जोड़ियां विच? कहंदे हाँ, हुणे तू क्या है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नूं जोड़ियां विच बिठावां, संघासन ते बिठावां, मिट्टी विच बिठा दियां, खूह विच धक्का दे दियां, तेरा कोई हक नहीं है। पहली बारी शरीर दा पता लगा जनक नूं भी शरीर रुकावट है परमात्मा दे मिलण विच। हौमे दा तीजा हिस्सा शरीर है। पहली बारी होश आई, क्योंकि हौमे ते ओला होर किहड़ा, होर कोई बहुती लंबी खेड कोई नहीं, गल पिछे मैं दी खड़ी है। उन्हें कहा भी 33% तेनू मैं वढ़ दिता विचों, तेरा दरवाजा 33%, एक हिस्सा शरीर। जदों क्या ना जोड़ियां विच बह जा, उत्थे बह गया तो जनक ने पहली बारी महसूस किया मेरा शरीर हौला हौला जिहा हो गया, लै गया गुमान हंकार, हौला जिहा हो गया। बेचारे माड़े बंदे का की जोड़ियां में खलो के रोटी मंगदा, यही साधना है, और कोई साधना नहीं। जदों तीजा हिस्सा गया, थोड़ा चिर बैठा, कहंदा जी मैं जा सकना, उठ सकना? कहंदे क्यों? कहंदे जनक कहंदा मेरा मन करदा मैं घर जा थोड़ा जिहा। कहंदे मन भी तू सौंप दिता है, तू नहीं फैसला ले सकदा, इत्थे बैठा रहो। सारा दरबार वहिंदा है, लोग वहिंदे ने भी जनक नूं की हो गया, पहला तो कहंदे पागल हो गया। इस बंदे नूं सद लिया, कहंदे विचे बैठा रहो। जदों अद्धा घंटा कुछ समा बैठा रहा ना, दो चीज़ां ते मर गई अंदरों, तन दा पकड़ ते मन दी। ते फिर अष्टावक्र कहंदा बुला हुण घोड़ा जिहदे उत्ते बह के तू ज्ञान लैना। कहंदा चढ़न लग्या, घोड़ा सद्या, घोड़ा तैयार किया तो कहंदे उठ के चढ़ घोड़े ते। जदों घोड़े ते चढ़न लगा ना जनक, अष्टावक्र ने बांह फड़ ली, कहंदे नहीं चढ़ सकता, घोड़ा भी मेरा है, तू धन भी मैनूं सौंपिया है। घोड़े के अर्थ ने धन, तेरा कुछ भी नहीं। वो कमाई वाला पुरुष सी, जदों तिन्ने चीज़ां उन्हें खोईयां तो एक दृष्टि पाई, जनक नूं ज्ञान हो गया सच की है। ये तिन्ने चीज़ां ही दुख है जीवन का, तन मन ते धन। धार्मिक बंदे ने इन्हां तिन्नां चीज़ां ते स्टडी करनी है भी इन्हां दे विच रहिंदिआं इन्हां तो वखरे होना है, बस ये चीज़ है, होर कुछ भी नहीं। बस इन्हां दे मोह तो छुटना है, इन्हां दे हंकार तो छुटना है। तन दा हंकार, मन की मर्जी का हंकार भी जिहड़ा फैसला मैं लै लिया, कौन हुंदा उहनूं टालण वाला?
ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਇਹ। ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 84 ਆਸਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਯੋਗ ਆਸਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਧਰਮ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਲ, ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਧਨ ਕਿਸ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਧਰਮ ਮੌਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਪਾਹ ਗੋੜਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਪਾਹ ਗੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
थल्ले पौड़ियाँ उतर के जाओ, बड़ा सारा घड़ा पिया, एक खाना है, उत्थे पानी घड़ा भर लेंदे सी बाबा दीप सिंह ते छोले रख लेंदे सी कोल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप लिखने सन उन्होंने बहुत सारे। 18-18 घंटे स्टडी करते रहंदे सी बाणी दे उत्ते, सिमरन भी करना, स्वरूप लिख लिख के, गुटके लिख लिख के संगत नूं वंडने, ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭੋਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਪਾਹ ਗੋੜਦੇ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਈ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ, ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਮੋਹ ਪਕੜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਚਾਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਓਂਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬਸ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਚਾਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਧਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਬੰਦ।
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਜਾਈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਬਹੁਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ 500 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਪਈ, 500 ਘੰਟੇ ਦੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 8-10 ਕਥਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌੜੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 500 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧੁੱਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਕ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਧ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਧਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਹੋ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਮ ਇਹ ਕਰਦਾ, 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ, ਬਾਹਰ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਛੁੱਟਣਾ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਟਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੌਹਰੀ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦਰਕਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਦਰਕਾ। ਅਦਰਕਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਰਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਯਤੀਮ ਜਿਹਾ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ, ਝੁਕਿਆ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਨਰਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਸੱਦਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।
बेपरवाह चेहरे ते लाली है। अज तक इन्नी बेपरवाही आई नहीं सी, सारी उम्र ते बेचारा डरदा रहा सी उहदे कोलों, भांडे मांजदा सी उहदे। जदों बैठा रहा ना गलबात चली तो सालस रहे सी। हुण मायाधारी बंदा ते माया दा भी हौमै। जदों उन्हें वेख्या ना सालस राय ने भी मेरा नौकर चौंकड़ा मार के बैठा ते रंग विच मस्त, इहदे ते किरपा हो गई। अज पहली बारी उन्हें अपने नौकर नूं हथ लाया भी पहलां ते जदों हथ लाउंदा सी ना बेचारा तरबक जांदा सी, डरदा सी अपने मालक तो। अज जदों अधरके ने अख खोल के वेखी ना लाल रंग दी, कंब गया सालस राय भी ये किहड़ी दुनिया में चला गया। बेपरवाही, रंग हसै रंग रोवै, चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी, बाज सच्चे ना। सालस राय सहम गया भी अज मेरा नौकर नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक ने कुछ इस तरह का भर दिता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारे भय खत्म हो गए ने, ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ जुड़ गया। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ महाराज ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ मेरे ते भी कर दो। नाले गुरु नानक देव जी दे पैर फड़ ले सालस राय जौहरी ने, पैर फड़े, कहते जेड़ी किरपा मेरे नौकर ते कीती जाए मेरे ते भी कर दो। गुरु साहब बैठे कहते जे तू किरपा लैनी है मेरे पैर छड़ दे। कहते होर की करा? कहते तू ये पैरी पाओ, अदर के ये पैरी पाओ। वेखो गुरु की कला किवें। कहन लगे महाराज तुसी ते फकीर हो, तुसी ते गुरु हो, तुहाडे पैरी पिया कुछ लभ जाए। कहते पैरी पिया कुछ नहीं लभदा, बंदे ते झुकिया लभदा है। जदों झुक जांदा हां मैं छड्डदा, ये छड्ड दे तू गल, तेनू मैं क्या है मेरे पैर भावें 10 दिन फड़ी रख कुछ नहीं मिलना, ये पैर फड़ ज लेने। हुण गल अड़ गई अगे। गुरु साहब नूं पता सी इहने नहीं फड़ने सीधे सीधे पैर। थोड़ा जिहा गया नेड़े, हुण 20 साल तो उहदी जुत्ती साफ करदा सी, भांडे धोंदा सी, कंबदा सी, गालां खांदा सी सारा दिन। जदों नेड़े गया ना मुड़ के आ गया, कहते महाराज ये तो मेरा नौकर है, मेरे जूठे भांडे ये पैरी पवा। कहते ये पैना पैने, होर कोई राह नहीं, तेरी हौमै टुटनी है तां दरवाजा खुलना। ये वो गुरु है। कहते ने अखीर नूं अतरका दे पैरी पिया सालस राय ते उन्हों भी प्रकाश होया। उहदे ते भी काम ते गुरु ने कीता। उस थां ते गुरु नानक देव जी ने अधरके नूं मंजी बख्शी सी पटना साहिब दी, ते सारे लोगों नूं कहा सी भी मेरे तो बाद तुसी इहदे कोल आउणा। गुरु नहीं है, मेरा सिख है, पर मेरी थां ते तुसी इहनूं मनना है। ये सिस्टम चलाया सी उदों मंजियां दा। किन्नियां मंजियां गुरु साहब ने दित्तियां ने, वो बाद विच जथेदारी का रूप धारण कर गई। तां कहण तो भाव इहदे विच रुकावट सिर्फ हौमै है, ते जनक दी हौमै खत्म हो गई। जनक बेपरवाह हो गया। सिमरन विच उहदे बड़ी जल्दी रंग लगा, क्योंकि मेन मुद्दा जिहड़ा सी उहनूं नुकता समझ विच आ गया भी सिमरन दे विच रुकावट किहड़ी चीज़। 3 चीज़ां दी पकड़। वो राजा जोगी बन गया, तख्त ते भी बहिंदा है, पर पता नहीं तख्त ते बैठा होया तख्त तो वखरा रहिंदा अंदरला हिस्सा। 2 रूप हो गए, जिन्हों गुरु अर्जन देव पातशाह जी निर्लेप अवस्था कहते। निर्लेप एक अवस्था है ब्रह्म ज्ञानी की, सिमरन करने वाले ते आउंदी है। निर्लेप का मतलब वो जिहड़ा काम करदा है ना, उस काम का अंदर प्रभाव नहीं पैंदा। ਜਿਹੜਾ भी काम करेगा ਉਹਦਾ बैक प्रैशर वापस नहीं आएगा मन के उत्ते। नहीं तो तुसी छोटा जिहा काम करो, एक बंदे नूं थोड़ा जिहा झिड़क दिओ, वो बेचारा मूँह ही उतर जाएगा ਉਹਦਾ। एक बंदे की थोड़ी जी वडियाई कर दिओ, दरवाजे विचों वापस लंघना औखा हो जाएगा। इन्ना हंकार। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ਉਹਦੇ ते वापसी असर नहीं पैंदा, ना उस्तत दा ना निंदिया दा, किसी चीज़ का भी कोई प्रभाव नहीं। वो निर्लेप अवस्था विच जनक चला गया, तख्त ते बैठा है पर तख्त का अहंकार नहीं। हुक्म चलता है पर हुक्म का कोई अहंकार नहीं। परिवार विच जांदा है, परिवार है, पुत्र ने, राणियां ने, माया है,
विच रहिंदा होया जिन्हों गुरु अर्जन देव जी कहते मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दो दुनिया उहदे हत्थां विच आ गई, एक रहिंदा इत्थे वे, सुरत उच्ची रहिंदी बहुत ज़्यादा उच्चे थां ते उडारी विच रहिंदी, इत्थे उहदा ध्यान ही नहीं, इहदे तो उच्चा है। एक दिन जदों अपने दरबार में तख्त ला के बैठा सी ते आले दुआले मुनियां नूं ऋषियां नूं पता लगा भी जनक ब्रह्म ज्ञानी हो गया। सुखदेव मुनि सी मिलन आया, सुखदेव मन्निया होया मुनि सी बहुत वड्डा, मिलन वास्ते आया तो उन्हें आया सी उन्होंने झूठा करन लई भी तू किहड़ा भगत है इत्थे विच फसिया होया पखंड करना। जदों आया सी सुखदेव मुनि, जदों अंदर जान लगा ना तो मोढे ते एक धोती रखी हुई सी, उन्हें सोचा भी बड़े बड़े लोग बैठे, धोती मैली सी थोड़ी, सोचा बाहर टंग जाना, एक थां सी टंग दी, आप अंदर चला गया। अगे जनक बैठा सी, उन्हें बड़े सत्कार नाल उच्ची थां ते बिठाया। तो सुखदेव कहंदा जी तुसी ब्रह्म ज्ञानी हो, फसे हुए माया दे विच, तख्त ते बैठे सारा दिन क्यों पखंड कर दो। कहंदे जी इस तरह का पखंड भी कदी कदी करना चाहिए। मखौल किया, ब्रह्म ज्ञान की उन्हें पूछया, गल्लां चलदियां रहियां। इन्ने चिर नूं बाहरों एक सिपाही दौड़ के आया, वो जनक नूं कहंदा भी राजन शहर नूं अग लग गई। जनक उस तरह गल्लां करता रहा सुखदेव मुनि। थोड़े चिर बाद 10 मिनटां बाद दूजा सिपाही आया, उन्हें कहा जी अग जिहड़ी अद्धे शहर नूं पार कर गई तो अपने वाल आ रही जिथे बैठे हैं। अद्धे कोठ के बाहर तुर गए, पर जनक उत्थे बैठा होया बिल्कुल शांत। सुखदेव मुनि भी थोड़ा जिहा अंदरों हिल गया। तो 15-20 मिनटां बाद एक तीजा बंदा बाहरों आया, कहंदे जी बादशाह राजन अग बिल्कुल अपने इस दरबार के गेट के नेड़े आ गई है। तो सुखदेव मुनि उठ के बाहर नूं भज गया, दौड़ गया। जनक कहंदा जी बैठो, की गल, परवाह ना करो। कहंदे जी गेट तक अग आ गई, मैं धोती टंग आया सी, मैं क्यों चुक लिया, मैं सड़ ना जाए। उन्हें कहा आ जाओ, बस ब्रह्म ज्ञान नितर के बाहर आ गया। कोई अग नहीं लगी, धोतियां जिन्नियां कहेगा मंगा देंगा, हुण बह जाए तो तेन मैं दसना है की असल। कहंदे सारा कुछ छड्ड के अजे धोती पिछे भजा फिरना, कित्थे फसिया, सड़न दे सड़दी है ते की हो जाएगा, होर आ जाएगी। सुखदेव नूं पहली बारी समझ लगी भी है कि मसला असल में धर्म का मसला चीज़ां छड्डण नाल नहीं, धर्म का मसला चीज़ां की पकड़ छड्डण नाल। बंदा जुड़िया किन्ना, संबंध किन्ना। यही गल एक सन्यासी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कही सी, जदों बाबा फतेह सिंह नूं गोद विच बिठा के सिर ते प्यार दे रहे सन। वो आया सी परमार्थ का लाभ लैण लई, वापस मुड़न लगा, गुरु साहब ने आवाज़ मार ली, कहंदे बैठो। कहंदे नहीं बैठना की है, तुसीं ते आप फसे हो बच्चियां च। फतेह सिंह नूं, बाबा फतेह सिंह छोटे से, तुसीं ते आप मोह विच फसे हो। सतगुरु कहंदे तू सन्यासी है, किन्ने साल हो गए ने, 20 साल। कहंदे इन्ने सालों की सन्यास वाली अख भी नहीं लभी तैनूं। कहंदे अखां ते हैन। कहंदे ते सारियां कोल ही ने जिहड़े संसार विच रहिंदे। जे तेरे कोल अख हुंदी ते तू मैनूं बाहरों नहीं समझदा, तू मैनूं अंदरों वेखना सी। कहंदे अंदर की है। गुरु साहब ने फिर उत्थे एक शब्द उचारिया सी, पढ़िए सारे प्यार नाल। उन्होंने उपदेश दिता, रे मन ऐसो कर सन्यासा, 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 रे मन ऐसो कर सन्यासा। बन से सदन सबै कर समझो, बन से सदन सबै कर समझो, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा, मन ही माहे उदासा, मन ही
रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, सन्यास अंदर दी घटना है, बाहर दी नहीं। गुरु साहब ने सानू अंदरों सन्यास दिता ते बाहरों किरत दिती। हाँ, ये गल जरूर कही भी किते कला बाहरों भेख ना बनाई, अंदर तेरे सन्यास होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए जिंदगी का। किन्ना कु तू इनू वरतना, छड़ाया नहीं। किन्नी कु तेरी लोड़ है जीवन दी, संसार दी। जे तू ओदे उत्ते एक कंट्रोलर गुरु नू रख जिहड़ा कंट्रोल करदा है। सीधा नहीं हो सकता, बड़ा कठिन है। कई लोग कहते ने जी, बड़े बड़े व्याख्याकार ने कहते शराब पीनी होंदी ना, कहते जी एक गिलास ही पीवी दी। क्यों? कहते वो डॉक्टर ने कहा दारू हुंदा, इहदा नाम भी दारू है, दवाई। पर इहदे विच सच हो रहे। वो कोई आदमी शराबी से, उन्हें एक लेख लिखा है। किसी ने पूछा कल तू सड़क ते डिगा होया सी, की गल थोड़ी नहीं पी सकदा? कहता मैं तो इको गिलास ही पीना, इको ही। कहते इको नाल डिग पैना? कहते ये नहीं मैनू पता। उन्हें लेख लिखा। कहता जदों मैं एक गिलास ही पीना उदों मैं होर व्यक्ति सा, एक गिलास ही पीने तो पहला। एक मैं उन्होंने पियाई, जदों अंदर चली गई तो मैं होर आदमी हो गया, फर्क पै गया। दूजी फिर उन्होंने पियाई, क्योंकि बदल जाता ना। बीरबल अकबर का एक मखौलिया दरबारी सी, ते अकबर कहता है शराब की बोतल लैके आया बीरबल। अकबर कहता है कि कहता है इहदे विच तोता है। वो कहते तोता कित्थों दिसदा ते है नहीं। कहते नहीं इहदे विच शेर भी है। कहते शेर भी नज़र नहीं आउंदा। फिर कहते एक होर भी सूर है इहदे विच। अकबर नूं पता सी कोई ना कोई नवीं काढ़ रोज़ कढ़दा, इसे सिर ते रोटी खांदा सी। कहंदा भी तीन चीज़ां किवें? कहंदे भी इहदे तीन हिस्से कर दे। एक बंदा सद के लिया, बिल्कुल कमज़ोर, तेरे सामने जिन्हों गल भी नहीं करनी आउंदी, इन्ना डरिया होया बंदा लभ के लिया। वो लियांदा गया, बोतल का तीजा हिस्सा उन्होंने पिया दिता। जदों तीजा हिस्सा गया ना, जिहड़ा बोल ही नहीं सी सकदा बिल्कुल, तोते वांगू गल्लां करन लग पिया, गल्लां आउण लग पई। थोड़े चिर बाद अकबर नूं कहंदा भी तू कौन है, कित्थों आया? जदों उहदा असर होया ना, कहंदे मैं अकबर बादशाह। कहंदे मैं नहीं मनदा तैनूं बादशाह। थोड़ा जिहा फर्क पिया, दूजा पिया, तो फिर अकबर दे गल पै गया, जाके शेर बन गया। कहंदे आ वेख, पहला तोता सी, इहदे विच तीजा हिस्सा, जदों अगला हिस्सा पिया हुण शेर। अकबर दे गल पै गया जाके। दरबारियां ने फड़िया, कहंदे हुण बाकी दा तीजा हिस्सा भी पिया दे। तीजा पिया ते जाके जिथे नाली सी ना गंदी, उहदे विच डिग पिया। कहंदे हुण इह सूर है, पहला तोता सी, फिर शेर, फिर सूर बन गया। इहदे विच इह बुराई गुरु साहब ने कुछ चीज़ां बज्जर कईयां ने उन्हें कहा इन्हां नाल समझौता ना करी, उन्होंने बज्जर कुरैतां कहा है। दूजियां चीज़ां बारे कहा जिहड़े कहने जी पूरा जा खाओ। पूरा खाण का मतलब ये नहीं भी तुसीं शराब पूरा जा पी सकते हो, मनाही नशे दे उत्ते। जिथे गुरु साहब ने कहा भी लोड़ मात्र वरतो, उत्थे जिहड़ा आम सधारण खाना पीना है उहदे बारे कहा है। ये चीज़ां बज्जर का मतलब हुंदा भी इन्हां नाल 1% भी समझौता नहीं। शराब पीण वाला सिख नहीं हो सकता। ये साडे विच नुक्स है। अज भी तुसीं वेखोगे मुसलमानां दे विच लुक छिप के की वो शराब पींदे। हुण मैं विदेश में भी वेख्या जाके, उन्हां दी पार्टी होवेगी, कुछ होवेगा, उत्थे शराब नहीं मिलेगी। तुहानूं शराब के नेड़े नहीं जाते। पाकिस्तान में तुसीं शराब नहीं पी सकते खुले, ये उन्हां दी पाबंदी है। पर हुण साडे ते कई लीडर भी कहन लग पे, कहंदे ये थोड़ी नशा है,
ये साड़ी आदत है। गुरु साहब ने कहा ये मत मारन वाली चीज़ है, इस बुराई नूं सिख ने त्यागना। इस करके निर्लेप किया गुरु साहब ने, सानू अलेपता दे दी भी इस संसार दे विच किवें जिहड़े राजा जनक सन उन्होंने फिर सिमरन किया। जिवें अष्टावक्र ने ये तीन चीज़ां छड्ड के कहा सी। आओ एक दो मिनट जुड़िए, इस पौड़ी दे विच होर भी बहुत सारे गहरे भेद ने। गुरु साहब कृपा करन कल नूं संपूर्ण करांगे। एक दो मिनट वास्ते सिमरन करिए, फिर समाप्ति करांगे। वाहेगुरु 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 सो साध संगत जी टाइम काफ़ी हो चुका, सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनी, भुलां चुकां दी खिमा करनी। आओ अरदास विच जुड़ो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।